Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello and Assalamu alaikum. This is me, your host Anam Gaur, and welcome to our show Gupshup. اور میں ہوں الوینا آغا. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا حسین. My name is Yunus Khan and I'm sad. Sad. پاکستان T20 میچ آسٹریلیا کے خلاف ہار گیا. افسوس ہو رہا ہے لیکن خوشی بھی ہو رہی ہے. پتا تھا After 20 years, more than 20 years, پاکستان نے آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز جیت لی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ میں. بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ بنا لیا. ٹھیک ہے جی, 16th century ماری and he has become the fastest batsman in the world to achieve this milestone. 13th والا ریکارڈ بھی ان کے پاس, 14 والا بھی, 15 والا بھی, 16 والا بھی. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وزیر اعظم بابر اعظم. ٹھیک ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ زندگی بھر ہمارے لیے پرائم منسٹر ہی رہیں گے, پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں, وی نیور نو کہ کہاں جاتی ہے پولیٹیکل سچویشن, بٹ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوں گے تو ہم لوگ جو ایک کولیبریشن کے ساتھ بناتے ہیں گورنمنٹ, ہم نہیں بنائیں گے بیکاز بلیک میلنگ کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہی سیڈ کہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم جیتیں گے اور ہماری پیور گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. بٹ دیکھیں سمپل سی بات ہے, عمران خان صاحب نے جو بھی کہا سرپرائز کر دیا. جن کا 150 سال کا ایکسپیرینس تھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the گورنمنٹس, سپورٹرز, پولیٹیشنز, اتنے سارے ایکسپیرینس پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز ہو گئے. لیکن ایک پولیٹیشین ہے جو میرا دل تو نہیں تھا, عوام نے بھی عمران خان صاحب کے چہرے پر ان کو ووٹ دیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ گیس کر لیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ہی زہریلے ہیں, انہوں نے پہلے گیس زہریلے. نہیں ایسی بات نہ کریں, انسان ہے. زہریلے مودی سانپ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹکر نہیں, وہ صحیح ہے, وہ نارمل. میں آپ کو بتا جاؤں یہ زہریلا نہیں ہے. بٹ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کیا کہا ایکس پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں. امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی گھر میں کوئی نہیں سنتا تو ہم کیوں سنائیں. بس انہوں نے کہا میرا منہ مت کھولو ورنہ قیامت آ جائے گی. او بھائی آپ نے اتنا بول لیا, پھر بھی کہہ رہے منہ مت کھولو. ان کی کرتوتوں سے قیامت نہیں آئی. جی انشاءاللہ آئے گی, اور عذاب بھی آ سکتا ہے اللہ کا, بھی نیور نو. یہ بھی پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا, بھی ڈونٹ نو. تو میں کہہ رہا ہوں چانسز بھی ہیں. بٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جی بتائیے. جی میں آپ کو بتاؤں گا, میں ہی بتاؤں گا نا. میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں رشیا نے جو بین ہے, جو فلائٹس پہ بین لگایا تھا ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن, اب انہوں نے فرینڈلی کنٹریز کے لیے کھول دیا ہے 52. یس, ماشاءاللہ سے. دیکھیں پاکستان کوئی بلاک کا حصہ نہیں ہے. کوئی بندہ عزت دے گا ہم اس کو عزت واپس ریٹرن کریں گے. کوئی ہمیں دھمکی دے گا تو ہم اس کو واپسی دھمکی بھی دیں گے, لیکن ساتھ میں ہم چماٹ بھی لگا دیں. میرے دل میں یہ ڈائلاگ تھا اور آپ نے بول دیا. واہ, دیکھیں دل کو دل سے راہ ملتی ہے, لیکن شو تک رہے تو اچھا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ. یس پلیز. مائی پوائنٹ از سمپل انم. پاکستان جو ملک ہے ایک آزاد ملک ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں تو میری جان آپ خود غلام ہیں. کچھ لوگ ہیں ابھی بھی غلام. بہت سارے, ایک نام بھی آ گیا ایک برانڈ کا, پالش کا, وہ ہم لے نہیں سکتے. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے وہ لگایا ہے تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. یس. لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ 2 گھنٹے میں آپ چائنا سے نیو یارک پہنچ جائیں تو کیسا لگے گا؟ یس ہم پہنچ سکتے ہیں. There are possibilities. How? اڑ کے جائیں گے اسپیس. Obviously. اور کوئی ٹیلی پورٹیشن والا ہے آئیڈیا؟ میں نے ایک نیوز کی تھی, وہ بہت پہلے کی تھی, وہ یہی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ اتنے ٹائم پر آپ جو ہے وہ چائنا سے یو کے جا سکتے ہیں. ارشا آپ کو یاد ہے؟ ہاں تھوڑا سا. الوینا آپ کو یاد ہے؟ میں تھی نہیں آپ لوگ کے ساتھ. آپ کو یاد تو نہیں, آپ نے شو تو ہمارا دیکھا ہے, فالو کیا, لیکن آپ کو یاد نہیں. دیٹ مینس سب کو یاد نہیں ہے. تو نیوز کو ہم رینیو کریں گے جیسے ہمارا لون رینیو ہو رہا ہے چائنا نے جیسے کیا ہے. تو نیوز یہ ہے, Oh, that's really exciting. ہائپرسونک فلائٹس, جو فلائٹس 14.5 گھنٹے لگتے تھے فرام بیجنگ ٹو نیو یارک, تو اب ہوگا 2 گھنٹے میں. چائنا بھی ریس میں کود گیا ہے. اینڈ میں آپ کو بتاؤں یہ 2025 میں فرسٹ فلائٹ ہوگی, ٹیسٹ فلائٹ ہوگی, اینڈ بائی 2030 یہ پیسنجرز کے لیے کھل جائے گی. ابھی ایک 12 سیٹر پلین انہوں نے بنایا ہے جو کہ ٹریول کرے گا. اینڈ کین یو امیجن, لیکن بہت مہنگی ہوگی موسٹ پروبلی. obviously, بٹ کین یو امیجن 1 مائل پر سیکنڈ یہ ٹریول کرتا ہے. Really? تو وہ رہیں گا تھوڑی ٹریول ہی کرے گا. ہاں تو یہی بولیں گے نا. جی ٹریول کرے گا. اور میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا, بیکاز مے بی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا جرنی. مجھے منزل چاہیے اور رہنما بھی عمران خان چاہیے, لیکن مجھے منزل تک پہنچنے کا زیادہ شوق ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں جرنی. اور what happened انم؟ ایک بڑا خوبصورت سا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ
मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन सफर बहुत हसीन है. वाह 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 वाह, ये जो सफर वाली बात है, मेरे लिए जो सफर है इंग्लिश वाला सफर बन जाता है, बिकॉज आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग दैट मच. We all will suffer अगर इमरान खान साहब नहीं हो. डेफिनेटली. यस यस, बट आई वुड लाइक योर ओपिनियंस ऑन इट, कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको मंजिल पसंद है, मंजिल पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है या वो जो जर्नी है वो एंजॉय करना जरूरी है, प्लीज. Manzils could be horrible sometimes, so I prefer the journey. जर्नी, ठीक Yeah. है. इसका मतलब शी लिव्स इन प्रेजेंट, Yeah. अच्छा, हाउ डिड यू नो दैट? क्योंकि ये जो मोमेंट है उसको एंजॉय करती हैं. दिस इज Okay. हर पर्सनालिटी. लेकिन मैं अगर अपना बताऊं, जी जी. I don't enjoy the You present. live in I future. always think yes about future. So Okay. that is why I don't remain happy all the time. Oh my God, I'll pray for you. जी सना. ठीक है. तो मेरे लिए मंजिल ज्यादा जी इम्पोर्टेंट जी होगी. जी, ठीक है. पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके सवाल पूछने से या मेरे जवाब देने से क्या आप मुझे मंजिल तक पहुंचा देंगे या मेरा सफर मजीद हसीन हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. तो फिर इस सवाल की बुनियाद क्या है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि अवाम को आप मोटिवेट करें, जी. बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स ऑफ यू ऑब्वियसली. जी एंड फेथ इज जरूरी, बिल्कुल. इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस पे भरोसा है तो मंजिल भी आसान, सफर भी हसीन. मंजिल आसान True कभी that. नहीं हो सकती. देखिए मैं एक बिल्कुल. चीज बताऊं, मंजिल आसान कभी नहीं हो सकती. अल्लाह पर तो हम सबको भरोसा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह भी ये फरमाते हैं कि अल्लाह की राह पर जब आप चलेंगे तो 1000 मुश्किलें आपका बेशक. सामने आएंगी उस जी, वक्त. जी, उनसे और तो fight आप करनी ये है. देखें एग्जैक्टली और आप ये देखें कि जो लोग गलत रास्ते से चलकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनकी जिंदगी आपको आसान लगेगी. क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ता इख्तियार करते बिल्कुल. हैं. लूसीफर के लेकिन दोस्त जो होता है ना. और लेकिन जो सही रास्ता इख्तियार करता है हमेशा मुश्किलें जो है वो सामने आएंगी. लेकिन हम यही प्रे कर सकते हैं कि सबका ही सफर जो है वो आसान रहे. लेकिन आप कितना ही भागे सफर से, हर किसी को एक सफर तय करना सना, है. थैंक यू सो मच. आपकी नेशनल असेंबली की जो स्पीच थी, एक सवाल दो ऑप्शन, मंजिल ज्यादा प्रेफर करती हैं या जर्नी? मैं नहीं बताऊंगी. मैं नहीं बताऊंगी. मैं नहीं ठीक है. बताऊंगा. हाँ. सफर में सफर है, सफर में सफर. मैं वाह, सना वाह, की जी. बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, काफी चीजें जो होती हैं यूनस, ऐसा होता है कि जब आप लोग अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मुश्किलात का जो है वो सामना करना ठीक है. पड़ता है. काफी सारे लोग गिर जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा और हम जो है वो दूसरे ट्रैक पर निकल जाते ठीक हैं, है. जो कि इजी होता है. ठीक है, और आप मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं. जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो आप वहां पर खड़े होकर रियलाइज करते हैं कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में क्या किया, यू नो. तो जो मुश्किल सफर से आप गुजरे होंगे और जब आप मंजिल पे पहुंचे होंगे तब आप अपने आप को जो है सेल्फ प्राउड जिसे कहते हैं ना कि जी, आप जी. अपने आप को प्राउड फील करवा रहे होंगे लोगों को कि मैंने मेहनत करके यहाँ तक वाह वाह पहुंचा. वाह, तो माशाल्लाह. इट्स अ गुड थिंग. एक सवाल मैं आपसे करूं यूनस. ठीक है, मैं बस एक बात कर दूं आपके सवाल जी, से पहले जी, कि जी. मेरा सवाल हाइपरसोनिक फ्लाइट का था कि हाँ. तब 2 घंटे में आप चाइना से अमेरिका पहुंच जाएंगे. course, मंजिल. जर्नी ट्रैवल कर नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली Yeah, of course, जल्दी से आप मंजिल. सवाल कीजिए. एक सवाल वो अवाम के लिए भी छोड़कर जाते हैं, फिर मैं चाहूंगी ब्रेक के आने के बाद जो है वो आप भी इसका जवाब दें. वो ये है कि आपकी नजर में और आप लोगों की नजर में मंजिल क्या है? क्या इंसान जिंदा रहते हुए कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के What बाद. kind of question is that? It's a very deep question. You need Exactly. to dive very deep. It's a very drained question. Yes, I will answer this question after a shotgun break. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में. और ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल मैं आप लोगों के लिए और यहाँ यूनस के लिए भी छोड़ कर गई थी. वो सवाल ये था कि क्या इंसान जिंदा रहते वक्त, जब तक वो जिंदा है अपनी ज़िंदगी में, क्या वो कभी मंजिल तक पहुँच भी सकता है या हमेशा एक सफ़र पर ही उसका सफ़र जारी रहता है और कहता है कि मंजिल आने वाली है, मंजिल आने वाली है? क्या है मंजिल आखिर इंसान की नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल. मैं जल्दी से एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको 10 सेकंड जी. की. ठीक है. एक बादशाह था, उसने एक ऐलान किया कि इस किंगडम का सबसे बेवकूफ जो इंसान होगा मैं उसको अमीर कर दूंगा. ठीक है. कंपटीशन हुआ, एक बेवकूफ जीत गया, उसको पहना दिया. ठीक है. विद पैसेज ऑफ टाइम मैं बड़ा शॉर्टकट करके सुना रहा हूं आपको. शॉटगन, लाइक अलवीना सेड, शॉटगन. ठीक है, बड़ा शॉटगन करके सुना रहा हूं कि एक टाइम आया कि बादशाह बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब होने लगी. तो बेवकूफ आया, उसने उसको जो अवार्ड था वो था सोने का हार. आप समझे 24 कैरेट गोल्ड. इफ यू आर अ वुमन, यू ऑब्वियसली अ वुमन एंड यू नो 24 कैरेट गोल्ड. तो क्या हुआ, बेवकूफ कहता है मेरे बादशाह की जो है तबीयत खराब है, मैं मिलना चाहता हूँ. बादशाह के पास गया, बादशाह को बोला कि बादशाह साहब सब कह रहे हैं आप जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बादशाह ने कहा कि मेरे दोस्त मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से वापस नहीं आ पाऊंगा. तो जो बेवकूफ है उसने कहा कि बादशाह सलामत, जैसा आपने कहा कि आप जा रहे हैं, इसका मतलब इससे बड़ा महल होगा, वापस तो आएंगे नहीं, उधर ज्यादा फल होंगे,
फ्रूट्स होंगे, चीजें होंगी, ट्रीज होंगे, हर तरह का एंटरटेनमेंट होगा ऑब्वियसली आपके लिए, तो आपने तो तैयारी की भी होगी। तो बादशाह ने कहा, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा नहीं, मैं हर चीज की मैंने इस दुनिया में, लेकिन मैं अपनी उस जगह की तैयारी नहीं कर पाया जहां की मुझे तैयारी करनी चाहिए थी। बेशक बेवकूफ इंसान ने अपना सोने का हार उठाया और बादशाह को पहनाया। बोलते हैं तब आपको पता था कि आप जाने वाले हैं और वापस कभी नहीं आएंगे और आपने तैयारी नहीं की, दैट मीन्स मुझसे ज्यादा बेवकूफ आप हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, देन मैं अपनी न्यूज़ की तरफ आना चाहूंगी। वो ये है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बार गौर करे और अगर आप ईमान के पक्के हैं तो आपको ये बात हमेशा समझ आ जाएगी कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक सफ़र है जो जारी रहेगा और मौत जो है वो आपकी मंजिल है। तो अपनी आखिरत के बारे में सोचें और माह रमज़ान है और माह रमज़ान में कोशिश करें कि अपनी आखिरत को जो है वो हसीन बनाएं, ना कि अपनी दुनिया के बारे में और दुनिया की परेशानियों पर आप जो है वो अपने आप को मजीद परेशान करें। अब ऐसा नहीं है, ऐसा ना, मैं थोड़ा सा तजाद रखती हूँ इस बात से। ओके, मैं चाहूंगी कि हम डिस्कस करें दुनिया को भी, क्योंकि ऐसा कहा गया कि सिर्फ दीन और दुनिया दोनों को बराबर लेके चलना है आपको। सिर्फ एक ही चीज में आप अपना ना 100% अच्छा, मैं आपकी बात अच्छे रहें और यहाँ पे अच्छे रहेंगे तो वो आपकी जो अच्छाइयां हैं वो आगे जाके आपको उनका रिवॉर्ड मिलेगा। मैं तो एक चीज कीप इक्वल बैलेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स, दीन दुनिया। हमारी हम ऐसे काम करें कि हमारी यहाँ भी, इस दुनिया में भी कामयाब हो और अगले जहान में भी कामयाब हो। अनम, आपकी इस बात को मैं हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक कॉल से जो है वो मुंसलिक करूंगी। वो ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ फरमाई है, उनका एक कॉल है, वो ये है कि जिस इंसान से इस दुनिया के अंदर हर इंसान खुश हो, या अगर भारी मिकदार की जो इंसान है, भारी तादाद में इंसान अगर आपसे खुश हैं तो समझे आप मुनाफिक हैं। जिस इंसान से कोई खुश नहीं होता या उससे सिर्फ चंद लोग खुश होते हैं तो समझे वो अल्लाह की राह पे जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो हम इंसान जो है वो, आप खुद यकीन माने, लोग आपके सामने आपके दोस्त बनेंगे लेकिन वो आपके पीछे आपके मुनाफिक होंगे। इंसान नहीं, मैं सिर्फ एक बात अल्लाह से मिलेगा। बेशक मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अनम कॉल बयान कर रही हूं, वो आपने कर दिया, उस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, वो पत्थर पे लगी। और मैं चाहूंगी कि इस डिबेट को हम यहीं खत्म करें, क्योंकि जिससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी बिफोर यू एंड दिस डिबेट, और मैं इस बात को कह के मुख्तसर सा इसको सम अप करूंगी कि आपको अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है और वो आपकी ज़ात से या आपकी किसी एक्शन से ना खुश है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने मामलात उसके साथ खुद दुरुस्त करें, क्योंकि अगर वो इंसान आपको नहीं माफ करता है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बेशक हकीकत बात है। कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर हमेशा ये सवाल जरूर किया जाएगा कि जमीन में जब आप रह रहे थे तो उसमें आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, क्योंकि एक टूटे हुए दिल की माफी तब तक अल्लाह नहीं देता जब तक वो इंसान आपको माफ ना कर दे। खैर, अब मैं अपनी न्यूज़ की तरफ आऊंगी और आपको बताऊंगी कि अभी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और अभी हालिया हालात जो चल रहे हैं उसमें जी क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो उसका। तो मैं बताऊं जी कि जिस खत के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये खत झूठा है और जो ओपोजिशन के जितने भी अरकान या पीडीएम के जितने भी लोग हैं उन्होंने जी कहा कि इस खत के बारे में सही से तहकीकात होनी चाहिए। और फौज से जो है वो बिलावल साहब ने और दीगर अरकान जो पीडीएम के हैं उन्होंने कहा कि हम फौज से उन्होंने ये सवाल किया। पहले तो मैं उनको कहूँगी सर आप लोगों की ना औकात नहीं है सवाल करने की फौज से, ठीक है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि फौज ने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि अभी रिसेंटली जो बिलावल साहब ने भी एक वीडियो बनाई और कहा कि सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है तो उसमें जी उनका जो फैसला है तमाम बिलावल और अपोजिशन के जितने अरकान हैं वो उस पर जो है वो मुंसलिक नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें फौज से जवाब चाहिए। फौज ने जो ट्वीट किया है मैं चाहूंगी कि आप फौज के ट्वीट देखेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ कहा है कि हमारा फैसला वही है जो कि सलामती सिक्योरिटी कमेटी का जो फैसला है वही है। तो आपको जी आंसर मिल गया है। Exactly. मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से पिटेंगे, कहाँ से जो है इन लोगों को बातें सुनने को मिलेंगी। प्लीज खुदारा अब जो है ना अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं ना, होश के नाखून ले लें, होश के नाखून ले ले, बिल्कुल, और नाखून भी काट के रखें, रमजान में नाखून ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं आती हूँ मजीद अपने आगे की अपडेट्स भी मैं आपको देती हूँ कि जो सवाल उन्होंने उठाया है कि क्यों आखिर वो जो सलामती काउंसिल का एक एजेंडा है उनको नहीं मान रहे थे, वो क्या एजेंडा है आप जी ये देखें। पहले ये इसका ओवरऑल जो है वो 3 पेजेस पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो एजेंडा है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैरा है मैं चाहूंगी कि ये वाला आप पैरा भी देखें। इसमें क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि ये जो ख़त है वो आपकी जो एक ज़बान होती है ना, यानी कि 2 ममालिक के दरमियान जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उसकी
کی خلافت کی ہے. تو یہ زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ جی ڈپلومیٹک زبان جو ہے وہ اس میں استعمال کی ہے, یہ کلیئرلی جو ہے اس خط کے حوالے سے کہا ہے. لیکن اب اس خط کے حوالے سے مزید میں آپ کو اپڈیٹ بتاؤں کہ اس خط کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کھل کر سامنے آ گیا. رشیا نے یہ چیز کہی ہے کہ جو امریکہ نے کر دیا گیا نہیں, انہوں نے جو اپنی بات کہی ہے وہ سب سے بڑا اٹیک کیا ہے, جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات بڑے اب جو ہے نا گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. رشیا نے کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے تھے, یعنی کہ دورہ روس کی بات کرتے, تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جب رشیا جا رہے تھے تو عمران خان صاحب پر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پر, جو حالات وہاں پر چل رہے ہیں اس پر عمران خان صاحب نے تمام تر جتنی بھی ان کی جو ایک دھمکیاں تھیں اس کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان صاحب وہاں پر گئے. تو رشیا نے اب کہا ہے کہ جیسے کہ عمران خان صاحب اس وقت ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, تو اس پر رشیا نے کہا ہے کہ اب یہ جو امریکہ ہے وہ سازش کر کے عمران خان صاحب پر اس لیے پریشر کر رہا ہے, اور اس کا جیتا جاگتا جو ثبوت ہے وہ ہے جی یہ تحریک عدم اعتماد. یہ دیکھیں اب ساری چیزیں کلیئرلی سامنے آ گئی ہیں. کیا کریں مجھے بتائیں, کیا کیا جائے ان کا, یہ لوگ مان نہیں رہے, الیکشن کے لیے تو مان نہیں رہے. یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے, اپوزیشن پارٹی ہے اسمبلیز میں, اپوزیشن پہ بیٹھی ہے نا, اپوزٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, جی جی, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو نا, عوام خوش نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ سے, تو بھائی یہ عوام کے پاس جائیں ووٹ لے لیں. یونس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ یہ پیسے دے کر جو ہے اپنے کام کروانا چاہ رہے ہیں, عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں نا جو سامنے جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے ہی ہیں, 22 کروڑ یعنی کہ جتنی بھی عوام ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے. بالکل, مطلب آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ جتنا بھی بھاری پلڑا ہے وہ تو عمران خان صاحب کا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ثنا, میں بھی اس میں بس ون لائنر دوں گی, پھر بریک کا وقت ہو رہا ہے. اس میں جس طرح خط کی بات ہو رہی ہے, جو یونس نے بھی یہی بات کی کہ آپ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں, نا اہل ہیں, تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں, مقابلہ کر لو. پھر بھگوڑا کون ہے الیکشن سے, وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ خان صاحب بھاگ گئے. وہ اب نہیں بھاگے, انہوں نے اپنی پوری قربانی دی ہے, اس لیے قربانی دی ہے تاکہ وداؤٹ پریپریشن, وداؤٹ خرید و فروخت, ہارس ٹریڈنگ, فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, اور پھر اس کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور حقیقت میں یہ ہونا بھی چاہیے. بالکل All I will say کہ cowards can never conquer the world. وہ اپنے آپ کو اگر جیت لیں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن خیر جھوٹے مکار اور فریب لوگوں کو نہ تو یہاں پہ کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی نظر ہے. بیکاز آئی نو پیپل آر گیٹنگ وائز ڈے بائی ڈے, کیونکہ ہر چیز اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آ گئی ہے, اینڈ دس از آل جسٹ بیکاز آف عمران خان صاحب. تو اگر وہ نہ ہوتے تو ابھی بھی بہت ساری عوام ہے جن کو نہیں پتا فیکٹس اور فگرس کا, وہ وہی والی باتیں جو لوگوں سے سنی باتیں اس پہ عمل کرتے ہیں. تو افسوس ہوئے جو بھی ابھی صورتحال ہے, لیکن اسٹل ہم یہی پرے کریں گے کہ اس ملک کو عمران خان صاحب کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم امید کرتے ہیں وی جسٹ پرے کہ وہ واپس آئیں اور ہمیں لیڈ کریں, بیکاز وی بیڈلی نیڈ ہم. بالکل ایسا ہی, اور وقت پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی. یہاں لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا شارٹ بریک. اور یہاں پہ میرے پاس آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے جسے سن کے آپ لوگوں کو کافی برا تو لگے گا, لیکن جو ہے مجھے ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو یہ گھٹیا اور یہ واہیات قسم کی ان کی جو حرکتیں ہیں, یہ اتنی زیادہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کو کوئی روک, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی رسی کھینچنے والا, وہ کوئی نہیں ہوتا, اور ان لوگوں کی رسیاں ویسی دراز ہیں. لیکن خیر جو اس میں سب سے عجیب بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کے کچھ سچ اچھے ٹرمز نہیں ہیں. کہنے کو ہم جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے دیٹ وی آر نیبرز, بٹ ہم کوئی ایسے نیبرز ان کو مانتے نہیں ہیں, برے نیبرز ہیں. ہاں, ایک گندے والے پڑوسی ہوتے ہیں نا جو بالکل خیال نہیں کرتے, وہ والے. لیکن خیر وہ بھی ہم فن وے میں بولتے ہیں, لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ اصل میں جو دشمن ہونے کا جو ثبوت دے رہے ہیں اور جسے دشمن ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں, یہ اس طرح کے دشمن ہیں. یہ دوست بھی کسی کے بنتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں, اور دشمن بھی بنتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں. اس چیز کا ریوارڈ تو انہیں ملنا چاہیے اور ملے گا. لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی بات, آج کی ایک بریکنگ تازہ ترین نیوز ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ویسے تو انڈیا میں بہت زیادہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں, بی جے پی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, مودی صاحب کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں, اور ان کے جو آئے روز نئے وہ گل کھلاتے رہتے ہیں, ان کی کالی کرتوتیں بھی کوئی خاص ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہم اکثر ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. تو ابھی ان کی ایک بڑی عجیب سی ایک نئی بات, ایک نیا مدعا کھڑا ہوا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. تو بھارتی ریاست مہاراشٹر میں مودی کی جماعت کے ایک ارب پتی رہنما ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو مفت اسپیکرز دوں گا تاکہ آپ جا کے مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے
तब आप इस पे जाके जो भी उनके मजहबी गीत हैं, हनुमान चालीसा हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर उनकी रिलीजियस थिंग्स, तो आप भजन, तो अजान के वक्त उसी सेम ड्यूरेशन पे आप जब अजान हो रही है वहाँ पे वो चलाएं. देखिए एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं भारत में जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खौफ व हरास में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अभी जब से एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी तादाद और इनकी पार्टी और इनके जितने भी रहनुमा हैं वो लोगों का जीना वहाँ पे महाल कर रहे हैं. उनके लिए बेसिकली जहन्नुम सा का एक समा है, वो वहाँ पे सांस भी मुझे लगता है खुल के नहीं रह सकते अंडर दीज कंडीशंस. अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके बाद हुआ ये है कि मजीद इनकी कुछ इसमें कॉन्वर्सेशंस हो रही थी जिसमें कुछ बातें सामने आई हैं. मेजर हाईलाइट पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करती चलूं. उन्होंने कहा है कि जब मजहब की बुनियाद रखी गई थी तो तब स्पीकर्स जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी इस दुनिया में, तो अब स्पीकर्स की क्या जरूरत है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. अब ये बहुत ही इनवैलिड और बहुत ही स्टूपिड पॉइंट है, वेरी फुलिश. और ट्विटर के ऊपर यही इंडियंस जो हैं, पहले तो मेरे बहुत ज्यादा हेटर्स होते थे, फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन थोड़े लवर्स भी आ गए, लेकिन हेटर्स की तादाद बिकॉज़ ऑफ योर ब्यूटी नहीं, वो फिर हम ऑफ एयर में बताती हूँ आपको. अच्छा. और जो है ये इसमें जो हेटर्स की तादाद है वो आज भी इतने इलॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं ट्विटर के ऊपर, और मतलब वो इस्लाम के अगेंस्ट हेट दिखा रहे होते हैं, और मतलब हमारे मजहब को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी स्टूपिड रीजंस के साथ. हम हजरत बिलाल के हवाले से हम सब जानते हैं, मतलब वो मुझे बिल्कुल अजीब सी एक कैफियत होती है जब हजरत बिलाल का जिक्र हम करते हैं और सुनते हैं कि सहर ही नहीं हुई थी एक दिन या एक सहर जब उन्होंने अजान नहीं दी थी. तो कवाली में भी हम ये फ्रेज सुनते हैं, बहुत सारी कवालियों में. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब उनको आजाद किया था, और उसके बाद उन्होंने अजान, उनको इसीलिए अजान का कहा गया था ना क्योंकि उनकी आवाज बहुत बुलंद थी, ताकि बुलंद आवाज और खूबसूरत आवाज बहुत दूर दूर तक जाए. तो ये उस वक्त अगर नहीं था कम्युनिकेशन का मोड, तो फिर हम इनसे भी बहुत ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चंस कर सकते हैं. कम्युनिकेशन की जो मोड है वो दुनिया में चेंज होते गए हैं. पहले कबूतर इस्तेमाल हुआ करते थे कम्युनिकेशन के लिए. उस वक्त कबूतर ट्रेंड होते थे, वो मैसेज जाके पहुंचाते थे. फिर इसके अलावा और चीजों का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए. फिर टेलीग्राम का एक दौर आया. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेडियो और न्यूज़पेपर्स के जरिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यूड रहा. और जो हमारे प्रॉफिट्स इस दुनिया में आते गए, 1,24,000 पैगंबर, सबके हवाले से हमें स्टोरीज का या उनके वाकयात का नहीं मालूम. बहुत कम प्रॉफिट्स के हवाले से हमें मालूम है. और जो अल्लाह पाक की 4 किताबें रिवील हुई उसके ऊपर भी हमें जितने प्रॉफिट्स का मालूम है, सिर्फ कुरान पाक जो है फुल एंड फाइनल उसी फॉर्म में एक अल्लाह की किताब मौजूद है, बाकी सब में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. इसके अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि प्रॉफिट्स को क्यों भेजा गया, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं आपको. इसीलिए मैं कहती हूँ सहाफत भी जो है बहुत ही एक ऐसी नाजुक कुर्सी है जिसको अगर आप समझें तो आपके ऊपर अल्लाह ने आपके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली. आप जो बात कर रहे हैं ना, प्लीज बगैर रिसर्च के कोई बात ना करें. देखिए, वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज रिलीजन, और हमारे इस्लाम में ये सिखाया गया है कि पहला जो मजहब है वो ह्यूमैनिटी है. तो मैं आपके रिलीजन पे फिंगर्स पॉइंट नहीं करूंगी, लेकिन ये जो आपने बात की है ये मेरे नज़दीक बहुत ही स्टूपिड और एक बहुत नॉनसेंस वाली बात की आपने. खुद आप लोग, आपकी जुबान में बोलूँ तो शौचालय खुले में करते हैं जाके. आपसे इसी तरह की स्टेटमेंट्स की वैसे तो हम उम्मीद रखते हैं. नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड. और दूसरी बात ये है कि आप जो मूवीज में गंदे गंदे वो एक अजीब सा इंसान गुटखा खा रहा होता है और आंखों में उसके सुरमा लगा देते हैं और बहुत बुरा इस्लाम का एक वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, बैड इमेज. आपको कुछ भी नहीं पता है, ये जहालत है बेसिकली. अना, मैं इस पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपकी इस न्यूज में ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. मुसलमानों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही होती हैं इसका कोई भी बोलने वाला इस पर नहीं है. वेस्ट में अगर हम देखते हैं, इवन हमारे पाकिस्तानी मीडिया में इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू नहीं होती जो कि होनी चाहिए. जहाँ पे हम बात करते, जिस तरह आपने भी कहा कि हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे आपके रिलीजन को क्योंकि हम सेंसिबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत खुश हैं. अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, मैं और मेरी एक और जर्नलिस्ट दोस्त, हम लोग जब एक जगह रुके तो वो मेरा इंतजार करती थी. जब मैं नमाज पढ़ती थी वो बिल्कुल पीसफुल होती थी, वो कोई अपने भजन नहीं बजाती थी. वो रिलीजियस है, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह ऊपर से उसका भी आउटलुक आपको रिलीजियस नहीं लगेगा, लेकिन वो भी बड़ी कटर है अपने मजहब में. अब मैं जब फजर की नमाज में पढ़ रही होती थी तो बिल्कुल पीस होता था, वो मुझे नहीं तंग करती थी. जब हम वर्कशॉप्स पे बाहर होते थे, जैसे मेरी नमाज खत्म होती थी, मेरा जिक्र खत्म होता था, उसके बाद वो अपना करती थी. टॉलरेंस लेवल था ना, हम दोनों एक ही रूम में थे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे. तो यही है, पाकिस्तान में तो टॉलरेंस है, हम लोग तो नहीं तंग कर रहे होते किसी को भी. जी सना, व्हाट विल यू से ऑन दैट?
अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ वो ये है कि देखिए मुझे समझ नहीं आता, सबसे बड़ी बात है मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर अजान की आवाज़ से ऐसी क्या चिंगारियाँ हैं जो आप लोगों के अंदर लगती हैं। मतलब हमने तो कभी भी आप लोगों की जब दिवाली होती है या दीपावली होती है उस पे पटाखों की आवाज़ से हमें तो चिंगारियाँ नहीं लगती, तो आप लोगों को हमारी अजान की आवाज़ से इतनी चिंगारियाँ क्यों लगती हैं। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, अगर गैर मुल्की कोई हमारे यहाँ आता है या कोई अजान सुनता है तो उसके ज़बान से मैंने हमेशा तारीफ सुनी है अजान के लिए। क्यों, जब आप अजान सुन रहे होते हैं ना तो दुनिया ठहर जाती है, ऐसा लगता है। इतनी मीठी आवाज़ और इतनी खूबसूरत आवाज़, आपका ईमान, एग्जैक्टली आपका ईमान ताज़ा होता है। इस चीज़ से आपको चिंगारी लगती है कि आप लोगों के पास जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को ये डर है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान वहाँ बसे हुए हैं या वो इंडियंस वहाँ पर हैं, कहीं वो हमारी अजान की आवाज़ से मुसलमान ना हो जाए। इस वजह से आप चाहते हैं कि आप लोग अजान पर पाबंदियां लगाएं। लेकिन एक बात याद रखें, कयामत तक, हशर तक अजान की आवाज आती रहेगी। बहुत आए अजान की आवाज रोकने वाले, बहुत चले गए। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी नस्तनाबूद होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजान की आवाज़ जैसे ही सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और पता चलता है कि जी अब हमने नमाज के लिए रेडी होना है, अपने आप को तैयार करना है। मैसेज से भी डर रहे हैं ना उर्शिया वो लोग, अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं कि आओ फला की तरफ। जी जी जी, इससे भी डर लग रहा है। तो वही बात है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि मोदी सांप जो है वो मेंटली तौर पे सिक्के हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ और वही बात है। इनफैक्ट उर्शिया ये तक कहा है कि अगर मस्जिदों से आपने स्पीकर्स नहीं निकाले तो हम जो इनका है रिलीजियस एक भजन हनुमान चालीसा, ये वहां पे आके ये करेंगे अजान के वक्त, खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, खुद ही उनको जो है वो इस बात का आंसर मिल जाएगा। और वही बात है, ओची हरकतें जो है वो कभी भी नहीं खत्म हो सकती। क्योंकि मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि इनको पागल खाने ना बहुत पहले ही जमा करवा देना था। पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात सुनते। प्लीज अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो प्लीज इनको जो है वो पागल खाने जमा करवा दें, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि अब ये जो बहुत ही ज्यादा जो अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर दी हैं ये वहां के लिए भी नुकसानदेह है, इंडिया के लिए भी नुकसानदेह है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं उर्शिया, और ये वाकई बहुत डेलिकेट मसला है। इस पे हम मजीद बात करेंगे, बल्कि यूनिस की भी राय जानेंगे कि ये जो मजहब के नाम पे सियासत करें ये ठीक है या ये गलत है। आप हमारे साथ रहें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे भारत में जो एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर। हम सब ने अपना अपना इसके ऊपर व्यू पॉइंट शेयर किया, लेकिन यूनुस का व्यू पॉइंट इस पर रह गया है। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद मेरी खबर की जाने बढ़ेंगे। जी यूनुस। देखें, अभी रिसेंटली 2 अप्रैल को कारोली एक एरिया है, एक जगह है राजस्थान पे, वहाँ पे मोर देन 40 मुस्लिम फैमिलीज को टारगेट किया गया, उनके घर जला दिए गए और उनकी शॉप्स जला दी गई और वहां पे कर्फ्यू हो गया, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया वहां पे। तो दे आर सो एक्सट्रीमिस्ट कि अब ये उस पे आ गए कि इंटरनेट भी बंद कर दें ताकि कोई न्यूज वहां से बाहर ट्रेवल भी ना करें। ये आ गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं बात हुई, किसी के कांटेक्ट नहीं हो पाया तो ये न्यूज आ गई, एंड दिस इज वेरी शेमफुल। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं जो कि मुस्लिम ओरिएंटेड चैनल्स हैं और इंडिया से ही बेस करते हैं। वो 4 चैनल्स हैं जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, उनका भी चैनल है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है। टोटल अगर हम बात करते हैं 26 बिलियन प्लस व्यूज थे उस चैनल्स पे और बंद कर दिया इंडिया ने। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं कि मुसलमान के जो स्पीकर्स हैं वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो भजन बजाएंगे ये मुंह से बजाएंगे या रावण उस टाइम पे स्पीकर्स लेकर आया था। मैंने जितना सुना है कि 12 मुंह है और 12 स्पीकर्स थे, वो शायद वो था, वो बेस होता है ना? जी सूंडें निकली हुई है। ये जो 12 मुंह थे रावण के, तो एक बूफर था, ठीक है, एक पे बेस प्लेट लगी हुई थी, एक पे माइक लगा हुआ था और एक पे स्पीकर लगा हुआ था। आई डोंट नो ये होगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू इंसल्ट देयर रिलीजन, बिकॉज़ उनके और लेकिन जवाब दिया है ना आपने उनके बात का। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों में और हम लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा कि हम उनके रिलीजन को इंसल्ट करें। मैं इंसल्ट नहीं किया, मैंने रावण की बात की क्योंकि वो खुद गालियां दे रहे होते हैं रावण को, इसलिए मैंने रावण को रख के एग्जांपल दे दी। आपका भजन, आपके जो भी हैं, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आप स्पीकर्स पे बजाना छोड़ दें। ठीक है, क्यों? जब आपका भी मजहब आया था, जो आपकी कहानियां, वहां पे आई डोंट थिंक सो कि स्पीकर्स इन्वॉल्व थे। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कुछ और था उस वक्त। जी जी जी, ये फोन जो है ये तोड़ दें, क्योंकि इसमें आपके प्रेयर्स भी होती होंगी। जितनी भी एप्स हैं रिगार्डिंग देयर रिलीजन वो भी ब्लॉक कर दे। व्हेन दे एंटर देयर टेंपल, तो वो एक रिंग बेल होता है ना, उनका भी एक है घंटा जी, तो वो भी तोड़ दें, क्योंकि उस टाइम तो नहीं आया था ना, बाद में बना ना घंटा। तो ये बहुत सारी चीजें, अब पहले अपने आप को सही करें फिर दूसरों पे करें, और ये अजान की आवाज रोकेंगे। बिल्कुल रोक नहीं सकते कभी। यूनुस, मैं ये दुआ करती हूँ
کہ جب یہ اپنا سسٹم لگا رہے ہوں گے اور اس ٹائم پہ لائٹ چلی جائے نا, جب بھی یہ لگانا شروع کریں, جب بھی اذان سنیں بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل. یہ بتا دوں کہ what goes around comes around. وہ ٹائم بہت قریب ہے میری جان ایکسٹریمسٹ بی جے پی یا ہندوتوا جو بھی ہیں آپ لوگ, آپ کو میں بتا دوں وہ ٹائم قریب ہے. جس دن پرائم منسٹر آف انڈیا کوئی مسلمان آیا نا, بھولیں گے نہیں ہم, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے, شاید معاف کر دیں. مشکل ہے یونس, کبھی آ نہیں سکتے ویسے, تبھی تو بار بار نہیں آئیں گے, ایک ٹائم آئے گا, اور ان کا مسلمانوں کا دل بہت بڑا ہے, ہم شاید معاف بھی کر دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں what goes around comes around. جیسا آپ آج کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, شاید مسلمان نہیں کوئی اور مذہب کے لوگ آ کے آپ کے ساتھ سیم کریں گے. ٹھیک ہے, اب بڑھیں گے اپنے پروگرام میں اگلی خبر کی جانب, جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. انفارچونیٹلی اس وقت اسمبلیز نہیں ہیں, تحلیل ہو چکی ہیں, اور اب کیا ہونے جائے گا, کیا ڈیزالو اسمبلیز دوبارہ سے جو ہے یہ بالکل اپنی پوزیشن پر آ جائیں گی جو ایکسپیکٹ کر رہی اپوزیشن جماعتیں, یا یہ ڈیزالو ہی رہیں گی الیکشنز کے بعد جو نیو اپ کمنگ الیکشنز ہے اس پر جانا پڑے گا, کیا سینیریو ہوگا. بہت ہی کنفیوزنگ سی سچویشن ہے. پرائم منسٹر نہیں ہے, کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ نہیں ہے, اور اس وقت جو سارے لیجسلیچرز ہیں وہ جگہ پر نہیں ہے موجود اپنے. تو مطلب ہر چیز اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا میں موجود ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ چیز موجود نہیں ہے. تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب, جنہوں نے 5 رکنی بینچ میں اس کو ہیڈ کیا, اس سو موٹو ایکشن کو, اور اس پٹیشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنسرنز ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ یہی ہیں کہ اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ انلیگل ہے یا ان لافل ہے. اب ایک طرف تو وہ کہتے رہے پورے 3 سال یا لگ بھگ 3 سال سے زائد کے عرصے میں کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور یہ ایک انکمپٹنٹ حکومت ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو کر دیں آپ کی اسمبلیز ڈیزالو. تو اب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو آپ یہ ڈیزالو اسمبلیز کو دوبارہ سے ریسٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے پوزیشن پر آ جائیں. اب اس میں کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے, یہ بھی انہوں نے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن ہی کہا ہے. آرٹیکل 69 کے حوالے سے جس طرح اگر ہم کہیں کہ آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہے, یہ کیا پروویژن ہے, تو یہ بہت ہی سمپل پروویژن ہے. یہ پروویژن کہتا ہے کہ کورٹس آر ناٹ ٹو لک انٹو میٹرز آن دی فلور آف دی ہاؤس, but there are exceptions, and we have precedents in the past where the ruling by the speaker has been set aside by the Supreme Court. یعنی یہاں پہ یہ کلیئر مینشنڈ ہے کہ اس میں جو میٹر ہے فلور آف دی ہاؤس کا, اس میں کورٹس نے نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ سارا میٹر جو ہے وہ انڈیویجولی فلور آف دی ہاؤس میں ہی دیکھا جائے گا. جو اسپیکر ہے وہ دیکھیں گے اور جو لیجسلیچرز ہیں جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو دیکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ مینشنڈ ہے چیز کہ ایسے پریسیڈنٹس بھی پاسٹ میں رہ چکے ہیں. پریسیڈنٹس کا مطلب فیصلہ, ایسا فیصلہ بھی پاسٹ میں رہ چکا ہے جہاں پہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا, یعنی اس کو ریووک کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. یعنی اس سے بہت ہی کنفیوزنگ سی سچویشن دکھ رہی ہے. اب ایک طرف تو یہ دکھ رہا ہے کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, جو فلور آف دی ہاؤس میں سچویشن ہوگی اس پہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ کنفیوزنگ سچویشن لگ رہی ہے کہ جو رولنگ پاس ہو سکتی ہے اس کو سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے. تو لیکن اس میں اب یہ کنفیوژن سی کریٹ ہو گئی ہے نا کہ کیا ہونے جائے گا, اور اس وجہ سے 2 دن کا موقع لیا گیا تھا جو لائرز تھے ان کی طرف سے کہ ہم اس کے اوپر مزید پریپریشن کے ساتھ ہم سامنے آئیں اور تاکہ اس کو مزید ہم بہتر طریقے سے کر سکیں. لیکن جو ہے اس پہ جو عطا بندیال صاحب ہے چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو زیادہ پرو لانگ یا لنگر آن نہیں کر سکتے, ہم اس کو موسٹ پرابلی ویڈنسڈے تک کرتے ہیں, ناٹ موسٹ پرابلی لیکن ویڈنسڈے کا ہی انہوں نے ٹائم دیا, اور ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اسی میں ڈیسائیڈ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا مزید اور اس کو لنگر آن نہیں کریں گے. لیکن جو وکلا تھے ان کی خواہش تھی کہ اس کو اور آگے لے کے جایا جائے. اب اس سینیریو میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. لیکن ایک اور بات میں یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمارا فلور آف دی ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اوپر ہم انٹروین نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک چیز کو کوشچن کریں گے, دیٹ از جو رولنگ ہوئی ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے, قاسم سوری کی جانب سے, کیا وہ لیگل تھی, لافل تھی یا نہیں تھی. اگر تو وہ ان لافل تھی تو پھر ہم اس رولنگ کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ لیگل تھی تو پھر اسمبلیز کمپلیٹلی ڈیزالوڈ ہے. لیکن دوسرا ہمارے آئین میں کانسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے جو کہ کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر اسپیکر آف دی اسمبلی نہیں موجود تو ڈیپٹی اسپیکر جو ہے ان کے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں لیکن وقت بہت کم ہے, اس کے اوپر بھی ہم اس کیس یا سینیریو کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. واٹس یور ویو پوائنٹ آن دس؟ بھائی دیکھیں, آپ میری بات سنیں, بہت سمپل سی چیز ہے اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب اسپیکر ایبسنٹ ہوتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں جو ڈپٹی اسپیکر
स्पीकर है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कोई अनलॉफुल काम किया, ये होना बहुत जरूरी था। वैसे भी तो प्रोपेगेंडा हो रहा था हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज के अगेंस्ट, तो ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जी सना, क्या कहती हैं आप इस अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि देखिए मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पार्लियामेंट के जो फैसले हैं पार्लियामेंट में हो तो बेहतर है, बिल्कुल। इसको आप जो है वो अदालतों में कहाँ लेकर जा रहे हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि कोई मुझे आकर इसका भी जवाब देते कि आप लोगों ने पार्लियामेंट का जो नुकसान किया है, वो जो शीशे और टेबल जो आप तोड़ फोड़ करके गए हैं, उसका भी कोई केस लेकर जाए अदालत में। वो हाई ट्रीजन नहीं है फिर, हाँ, उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप क्या कहेंगी इस पर? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मेरे जहन में आई है कि नेशनल असेंबली में जो सरप्राइज मिला है ना, वो आने वाले टाइम में भी मिलने वाला है। तो मैं उस सरप्राइज का जो है वो वेट कर रही हूँ बहुत ही शिद्दत से। बिल्कुल बल्कि जी, सब हम सब कर रहे हैं। डेफिनेटली जी यूनुस। जी अलवीना जी, मैं अवाम की राय बताऊंगा। एक बहुत अच्छी बात है, आई वांट टू रीड इट आउट। इट्स व्हाट अ सिचुएशन, वी हैव अ पीएम हु इज नॉट द पीएम but is still the PM, while those who did not want him to be a PM now want him to be the PM so they can remove him as the PM. वाह 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 वाह, ट्रांसलेट नहीं करूंगा तो टाइम नहीं, कि ब्रेक का टाइम हो गया। ठीक है, so we're taking a short break. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से एक बार फिर वापस आने का शुक्रिया। अब प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे वॉइस नोट, जहां पे हम अपने अवाम से, मासे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सुनते हैं वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिश है और मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, और अब जो रमज़ान की जो आप लोगों ने एक ट्रांसमिशन जो शुरू कर दी है, टाइमिंग चेंज कर ली है, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सुबह इतना जल्दी उठा नहीं जाता। तो आप लोग बहुत सेंसिबल लगते हैं मुझे, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपका लास्ट शो देखा था जिसमें आपने शाहनवाज साहब के बारे में बात की थी, जिन्होंने रेशम के धागे से कुरान पाक को लिखा था। तो उनकी मैंने चीज़ें जो सुनी, मुझे वाकई अफसोस हुआ कि उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी, उन्होंने अपना पैसा, जायदाद, सब कुछ लगा दिया, बट हुकूमती सतह पे उनको उस तरह की पजीराई या उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आर्टिस्ट को क्यों इस तरह जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, क्यों उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता? और उनको मतलब देखिए, बाहर ममालिक में तो आर्टिस्ट का एक अलग से एक फंड होते हैं, एक चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ ज़रा आप बताएं कि ऐसा क्यों है, आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हुकूमती सतह पे ऐसा क्या होना चाहिए कि उनको उनका हक मिले? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का। मैं इस पे यही ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं आर्टिस्ट की, क्योंकि उनको सॉफ्ट पावर के लिए बहुत सारे ममालिक में यूटिलाइज़ किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिली। और ख़ास तौर पर आपने बात किया एक ऐसे पीस ऑफ आर्ट की जो कि हम सबके दिलों से बहुत ज़्यादा करीब है। जिस तरह हम जानते हैं कि किस तरीके से शाहनवाज साहब ने कुरान पाक को इतनी काविशों से लिखा, और ये एक ऐसी एक पीस ऑफ आर्ट है जिसको हम कहेंगे रिकग्निशन स्टेट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि मिले। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट लेवल के ऊपर उनको रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम से, ये सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे रिलीजन इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा एक प्यारा कनेक्शन है इस बात का। जी यूनुस। बिल्कुल अलवीना, आपने बहुत अच्छी बात की कि स्टेट लेवल की तरफ से उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। बट मैं बताता हूँ कि जो इंसान इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लेता है पाकिस्तान में, इस दुनिया की बात करते हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड बेनिफिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द हियर आफ्टर बेनिफिट्स। दीन वहाँ पे बन गया उनका महल, वहाँ पे दुनिया जहाँ का जो भी आप कह सकते हैं, एक इंसान को आप दे सकते हैं, एक अल्लाह ताला ने जो वादा किया है एक नेक इंसान का, अचीवमेंट का, मेरा ओपिनियन में भी आई एम रॉन्ग कि उन्होंने वो अचीव कर लिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो वर्ल्डली बेनिफिट्स है इनसे इनको कुछ होगा। करें, वो फर्ज है हमारा, हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी नीड टू सपोर्ट हिम, बिकॉज 10 साल दिए उन्होंने अपनी लाइफ के, ओवर 3 मिलियन रुपीज, बहुत मुश्किल काम। एग्जैक्टली। और जैसे उन्होंने किया है, आई जस्ट वांट टू से कि इस्लाम में भी है कि अगर आप अल्लाह की राह में, उन्होंने एक्सपेंड किया ना अमाउंट, अल्लाह की राह में स्पेंड करते हैं तो ही विल गेट फुली रिपेड बाय अल्लाह। तो इट डजंट मैटर, बट वी नीड, हमें शर्मिंदा होना चाहिए एज अ नेशन, एज अ कंट्री, कि हमारे मुल्क में से कोई ऐसा इंसान निकला है और हमने कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। और अनफॉर्चुनेटली उनको इतने ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। उनको अप्रिसिएशन तो दे, जिस तरह हमने अपने शो के प्लेटफॉर्म से उनको अप्रिशिएट किया, वही वाली बात आ जाती है। अल्लाह की तरफ से तो ऑब्वियसली उनको अजर मिल गया है, और बहुत बड़ी बात है, लेकिन अप्रिसिएशन स्टेट लेवल के ऊपर
तो साथ जरूरी है, लेकिन मीडिया भी जो है इसको बहुत ज्यादा मीडिया हाईलाइट करे तो बहुत बेहतर होगा। वो बिजी हैं, अभी पैसा लिया हुआ है उन्होंने ऑपोजिशन से, वो वही एंटी न्यूज चला रहे हैं, एंटी पीएम, तो जी आई कांट से मच अबाउट इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस, मीडिया को हम पैसे नहीं दे रहे ना, तो हमें प्रमोट कैसे करेंगे। तो जो उन्होंने काम किया है कुरान पाक का, जो उन्होंने एक मिसाल जो है वो कायम की है, वो बहुत ही खूबसूरत है, और आज नहीं तो कल उनको अजर मिलना ही मिलना है यूनिस। वही बात है कि जब आप अल्लाह की राह में जब आप स्पेंड करते हैं, जैसे कि आपने कहा, तो वो आपको इसी दुनिया में अजर मिलता है, ठीक है, और वो एक अलग सी जगह जो है वो नेक्स्ट जहां में आपको मिलती है। क्या बात। अच्छा देखें, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलना या फिर नेशनल लेवल पे भी मिलना एक बहुत बड़ा ऑनर होता है अगर किसी को मिलती है। भले ये तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है, और जब जब इससे कोई पढ़ेगा उसे उसका इसाले सवाब मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इनका रिवॉर्ड इन्हें यहाँ मिले या ना मिले, किसी तरह की कोई रिकग्निशन ना मिले, आगे तो ज़रूर मिलेगा इसका अजर। लेकिन द पॉइंट हियर इज़, जो इन्होंने भी रेज़ किया कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, भले वो ये तो खैर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, लेकिन इसके अलावा भी, लेकिन खैर इन्होंने तो बहुत ही एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किए, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा इस चीज़ को डेडिकेट कर दें, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आ सकती है। और फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि यहाँ इस दुनिया में मुझे इस मेरे इस कदर की मेरे इस टैलेंट को बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं दी जाएगी, इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे जितना कि आम हमारे आर्टिस्ट लोगों को पसंद किया जाता है। क्योंकि अगर मैं मीडिया के आर्टिस्ट को कंपेयर करूँ, ये वाला जो टैलेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इसके तो हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बट द सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी इज़ के लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे उस वैलिडेशन मिलती है, या उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिसिएशन वो देना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियों में एंटरटेनमेंट का बाइस हो, और उनको वो चीज़ जो है खुशी दे रही हो। अब ये बहुत एक क्या कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का के पर्पस। हाँ, मैं एक सवालिया निशान छोड़ सकती हूँ, और इस पे मैं भी बहुत ज़्यादा खामोश हो जाऊंगी, क्योंकि इस पे कहने को मेरे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक डार्क साइड है हमारी रियलिटी, हमारी सोसाइटी की, और ये रियलिटी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि समवेयर हमें पता है कि हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उदास कर देती है, बहुत अफसरदा सी सूरत हाल है, लेकिन इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऑल वी नीड टू थिंक ऑन दैट कि क्या हम अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देंगे तो इससे हमारा क्या जाएगा, आप गरीब नहीं हो जाएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इन बीइंग अ गुड सिटीजन, आई गेस। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मैं एक चीज़ आपको बताऊं सबसे पहले कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिस्ट हैं उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही तो है, किसी आर्टिस्ट के नाम पर कोई सड़क जो है वो बन जाती है या कोई पार्क बन जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद जिंदा रहते नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, मैं ये जब भी बात कहती हूँ वो अफसोस के साथ कहती हूँ, वो ये है कि हम चीज़ों को सराहते नहीं है। यानी कि हमारी जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ हमें भी मसाला अच्छा लगता है ना, क्योंकि तो हमारा मीडिया तो वहीं जाएगा जहां मसाला है। तो अफसोस के साथ हम सराहते नहीं है। अगर उमर शरीफ साहब ने कोई अच्छा काम किया तो हम भूल जाएंगे, जब वो जिंदा थे तब हमें ख्याल नहीं आया कि उनकी मदद करें या उनको कोई तकलीफ है, जब वो हॉस्पिटल में है जाकर उनकी सलाम दी जाने कि आप ठीक हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं अगर आर्टिस्ट की बात करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है जी, एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपको खास तौर पे मैं तो उनका जिक्र करूंगी जो हम 90s बॉर्न हैं, हम जकूटा जिन और ये सारे कैरेक्टर्स, ऐनक वाला जिन, वो जो मतलब हमें पता चला कितना दुख हुआ, और वो भी कि ये सब इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे। इस पे आप क्या अपना इनपुट देंगे? क्विकली कि देखें जो आर्टिस्ट है ना, जो जितने एक स्टार्स थे एक लेवल पे, उन्होंने सेविंग्स नहीं की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, उन्होंने मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, पहले वाले जो थे, अब तो बहुत सेफ हैं, पुराने वालों की बात कर रहा हूँ कि जो अभी बुरे हालात में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन। वो गुड रीजन भी हो सकता है, बैड रीजन भी हो सकता है। बट कमिंग बैक टू आवर आर्टिस्ट, अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क में आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन आर्टिस्ट एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, तो इंटरनेशनल मार्केट खुली हुई है आपके लिए। अगर आपकी पेंटिंग है, आप NFTs पे बेच सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, हमारी कौम जो है पढ़ने से भागती है, सीखने से भागती है। चोरी करने में हम बेस्ट हैं, जुगाड़ लगाने में बेस्ट हैं, पढ़ने से हम भागते हैं, सीखने से हम भागते हैं।
यूनस, मैं एक चीज़ कहूँगी आपकी बात पर, वो ये है कि क्यों आखिर हमेशा ही हम हमेशा अपने अवाम को कहते हैं जी दूसरा रास्ता इख्तियार करें। यानी आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के जितने शहरी हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आपकी इज्जत नहीं है, आप जाएं जी गैर मुल्कियों से पैसा लें, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने हाथ खड़े कर लिए, हम आपको इज्जत नहीं दे पा रहे। क्यों आखिर एक आर्टिस्ट को जो है वो हम इस हद तक, एक खुददार आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्ट हमेशा खुददार होता है क्योंकि वो अपनी कला दिखा रहा होता है, क्यों आखिर एक आर्टिस्ट को हम उस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो मांगने पर आ जाता है? सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि ये आपका भी फर्ज है, ये हमारा भी फर्ज है। जिंदगी में मसाले, मिर्च मसाले सब बहुत होंगे, लेकिन एक बार एक तन्हाई के आलम में ये सोचिएगा कि आप हुक्मरान अगर किसी एक ओहदे पर फाइज हैं तो क्या आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ कर रहे हैं? नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बिना मिट्टी, बिना ज़मीन के जो है वो आप सब्जियां उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? साउथ पंजाब में जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और हो भी चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारा इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट है, ठीक है? वहाँ पर आप लोग अपने घर में भी ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। I mean, आप लोगों को पता है घर कितने छोटे छोटे होते हैं, बालकनीज कितनी छोटी छोटी होती हैं, तो ये वहाँ पर भी आप फ्रूट और ये सब्जियाँ उगा सकते हैं घर में। इट्स अ मशीन? नहीं यूनस, ये मशीन नहीं है, ये अलग से ही टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी का सबसे पहले मैंने नाम लिया, और टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक बूस्ट कर चुकी है और आने वाले टाइम में बूस्ट ही करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है? ये नॉर्मल चीज़ें जैसे कि हम लोग खेत खलियान ये जो हम देखने के लिए जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप अपने घर में देखेंगे। एग्जैक्टली। तो आप देखें कि जो इसका पानी का जो सिस्टम है वो रिसाइकल होता है। जब आप इसके अंदर पानी जब आप डाल रहे होंगे तो वो रिसाइकल हो रहा होगा, ठीक है? और आई थिंक मौसम का भी थोड़ा ना इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली। इनका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा ऐसा यानी कि पूरा कवर्ड है, और कवर्ड के साथ साथ ही अंदर सारी चीजें वो वाली चीजें हैं जो 12 महीने जो हैं वो एक पौधे को मिलती हैं, जो एक दरख्त को मिलती हैं। तो उर्शा, इस प्रोसेस में ये काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, मस्त है, क्योंकि जैसे जैसे हम दौरे जदीद में एंटर होते जा रहे हैं इस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारी टेक्निक्स हैं वो भी मज़ीद मॉडर्न होती चली जा रही हैं। तो ये जो सॉइल के बगैर हम जो इसमें से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, तो क्या ये जो हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं ये उसी की तरह की क्वालिटी मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। साइंटिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो खुद इस चीज़ का मुआयना कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, पानी जो है उसके अंदर 10 किस्म की जो है वो केमिकल्स हैं जो इनको पौधों को फीड करवा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि विदाउट सॉइल आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल उर्शिया, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि एग्री बिजनेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्रोनॉमिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रही थी ब्राज़ील से, क्योंकि ब्राज़ीलियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं व्हेन इट कम्स टू एग्री बिजनेस, और वो उनकी जो इनोवेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, एक तरफ मैं जब उनसे बात कर रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम हैं तो एग्रीकल्चरल स्टेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एग्री बिजनेस में जो तरक्की है वो बहुत ही वो सिंस डेकेड्स हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन ये फाइनली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, और ये भी खान साहब की हुकूमत में हम देख रहे हैं। और आपने जिस तरह बताया कि रिसर्चर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को डेफिनेटली वो रिसर्चर्स जो मौजूद हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। अगर मैं एनवायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट्स की बात करूं या रिसर्चर्स की बात करूं, वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में तो एनवायरमेंट के ऊपर काम ही नहीं होता था। ये तो अब खान साहब ने एनवायरमेंट के ऊपर बातें की हैं, तो फाइनली हम देख रहे हैं कि शायद थोड़े बहुत लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। लेकिन जिस तरह इस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी है, तो जहाँ पे सॉइल क्योंकि ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पे सॉइल तो है नहीं, पानी के जरिए और ऑक्सीजन के जरिए किस तरीके से एक पावरफुल या स्ट्रेंथन्ड एक हर्ब, फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा रहा है, तो दैट्स इनक्रेडिबल। और हम उम्मीद करते हैं कि मजीद जो रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। I want to ask you something, but before that I want to tell you कि ब्राजील मैंने भी कॉल किया अपने दोस्त को। तो मुझे पता था आप कुछ ना कुछ कहेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो 1 मिनट तक बात हुई, 59 सेकंड्स पे ना फिर कॉल कट गई। फिर मुझे पता चला कि वो 80 रुपए पर मिनट है वहाँ पे।
तो हमारे यहाँ पे 80 रुपए कटते हैं. बट कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, दैट इज कि देखें ये ऑब्वियसली एक छोटा होगा, ठीक है, कि फ्रूट्स की जो एक टाइम है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स में एक टमाटर उगता है, ठीक है, ड्यूरेशन उसकी. तो अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो हाउ कैन यू के ये फॉर द पीपल अराउंड यू कि इट्स सफिशिएंट कि वो एक फ्रूट के लिए हम 6 महीने इंतजार करें? बिकॉज हमारे यहाँ पूछने तो दीजिए, अब हमारे यहाँ क्योंकि स्पेस कम है, बैल्कनीज की बात कर लें, अब कहते हैं कि हमने छोटा सा गार्डन एरिया बना लिया, तो दिस इज माय, इज इट सफिशिएंट फॉर द पीपल? अच्छा, मैं आपकी बात में आपने बहुत मैं कहूँगी अहम जो है वो एक पॉइंट आपने जो है उठाया है, वो ये है मुझे लगता है जितना मैंने भी इस बारे में पढ़ा है और मैंने देखा है वो ये है कि ये जो बेसिकली अगर आप बात करें ना तो चाइना से ही बहुत सारी चीज़ें जैसे हम आ रही हैं बहुत सारी, तो ये तरीका भी जो है वो चाइना से ही पाकिस्तान में आए. और ये सिर्फ आपके घर के लिए महदूद नहीं है कि आप अपने घर के लिए जो है वो आप अपनी गैलरी पर एक छोटा सा एरिया बनाए, उस पर आप टमाटर या जो भी आप उगाना चाहते हैं वो उगाए, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक बाकायदा से एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर पानी के जरिए जो है वो सब्जियां उगाई जा रही हैं. घर में थोड़ी हो सकेगा ये काम. हाँ, सब्जियां जो है वो पानी के जरिए उगाई जा रही हैं. और जो भी आप खाद अगर खरीदते हैं ना तो खाद के अंदर जो भी अज्जा होते हैं वही अज्जा जो है वो आपको आप पानी के अंदर मिला रहे हैं. पानी के अंदर मिलाकर तो आपको फिर खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उसके जो अज्जा थे वो आपने निकाल कर आपने पानी में मिला दी. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही अच्छा है. जो आने वाले टाइम में जो है लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है. और दूसरी चीज ये है कि मैं पानी का सिस्टम आपको बता देती हूँ. यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफिकली कोई खड़ा नहीं होगा, कोई माली खड़ा नहीं होगा कि जी पानी देना है. ये ऑटोमेटिकली जो है वो 1.5 मिनट की मशीन चलेगी और उसके बाद ये खुद ही रिसाइकल पानी होता रहेगा. ये सिस्टम ऑटोमेटिकली है. और ये स्मॉल स्केल पे भी अवेलेबल है और लार्ज स्केल पे भी अवेलेबल है. तो ये आपके लिए फायदेमंद ही है. देखिए इसके ऊपर काम हो रहा है, आज काम हो रहा है, 6 महीने के बाद आप देखेंगे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुकी हैं. अर्शिया, यहाँ सवाल ये बनता है कि वो जो कराची वाले और पाकिस्तान वाले वो जो आपको पता है गटर का पानी सब्जियों पे जा रहा था, तो अब ये ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. मुझे एक और भी बात याद आ गई. लास्ट शायद मैं पिछले प्रोग्राम में भी एक मैं टॉपिक लेकर आई थी तो आपने यही एग्जैक्टली सवाल किया था क्योंकि हमारी सना जो है वो सब्जियां वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा पसंद करती है. तो उनको यही क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो वेजिटेबल है वो गंदे पानी से तो नहीं बनी. अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड होके आगे चीजें जो है वो बढ़ रही हैं. इट्स अ वेरी हाई टेक प्रोसेस. जी उर्शिया, मैं इसमें क्विकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने एक इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की बात की और यहाँ पे बस मैं ये कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग एन एग्रीकल्चरल स्टेट हमने पॉलिसीज ठीक से डिजाइन नहीं की. जितने भी स्टेट्स होते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं. हमारा ऐसा होता है कि हर आने वाली हुकूमत नई पॉलिसी बनाती है और जो पिछली हुकूमत की अगर अच्छी पॉलिसी भी होती है उसको खत्म कर देती है. एटलीस्ट हमारी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, जितनी भी क्या वो 2 ही गुजरी हैं और वही जो ब्लॉसम और ब्रांड का नाम हटा के और दूसरे वो जो डीजल साहब है वो बेचारे हर जगह हर सबके साथ होते थे और बाकी जो भुट्टो साहब आज भी जिंदा हैं. बाकी लेगेसी उनकी शायद जिंदा नहीं लेकिन वो जिंदा है. मसला ये है ना कि अलविना एक चीज बता दूं कि देखें यहाँ पे आप एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात कर रही हैं, यहाँ फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है तो मुल्क में पता नहीं क्या हो जाता है. लेकिन ये तो शर्म का मकाम है ना. फॉरेन पॉलिसी तो फिर भी एक अपग्रेड एक चीज हो गई, लेकिन एग्रीकल्चरल स्टेट कहते हैं हम खुद को. और वही पॉलिसीज हमारे पास नहीं है तो फिर हम एग्री बिजनेस में तरक्की कैसे करेंगे? ना हम तरक्की कर सकेंगे, ना हमारी पॉलिसीज होंगी ठीक से. और हमें अब जब आपको पुलवामा अटैक का वाकया याद होगा, टमाटर कम पड़ गए थे. टमाटर तो बंदा एक दूसरे के ऊपर मारे क्या करे, इतने महंगे हो गए थे, किस लिए इसको इस्तेमाल करे? तो भाई ये इस मुल्क में जब टमाटर ही आपको महंगे मिल रहे हैं सिर्फ आपके पड़ोसी के साथ झगड़े के ऊपर, तो हम क्या कहें? अब इस पर हमने उनका नमक रोक दिया था, कोई मसला नहीं. ठीक है. मगर मुझे ऐसा लगता है ऑपोजिशन को इसमें भी ना कोई वो क्या कहते हैं घपला लगेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये पता नहीं कैसे टेक्नोलॉजी बन गई, मतलब उनको इनमें भी जो है वो कीड़े निकालने हैं. खैर हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का. पहला फैक्ट जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं. इस्लाम, द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाम. ठीक है, और हम तब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है मे पीस बी अपॉन यू. ऑलराइट, मे पीस बी ऑन यू. और जो लोग बोलते हैं कराची में सलालेकुम, इसका मतलब बता दूं कि आप पे मौत वाक़या हो, तो आई एम पासिंग द फैक्ट
to Sana. थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत जी। ज्यादा दिलचस्प है। वो ये है कि क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप रात को देर से सोने के आदी हैं या आप सुबह सोने के आदी हैं कराची वाले तो इससे ये होता है कि दिमाग को जब आप प्रॉपर उसको जो है वो आराम नहीं दे पा रहे होते तो आपका दिमाग सुकड़ने लगता है। Wow. Please pass the ball. टू अनम। ओके, थैंक यू सो मच। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि पैंडा के बारे में हम सब जानते हैं और हमें बड़ा प्यारा भी लगता है वो जानवर, लेकिन वो चाइना का पेटेंट एनिमल है और अभी इंडिया बहुत सारी कोशिश कर रहे है उसको लेने की, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम नहीं देंगे। 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, 20 साल से लगा हुआ इस चक्कर में कि हम पैंडा लें और अपने यहाँ पे रखें, लेकिन क्योंकि एक तो उनको रखना जो उनके सर्वाइविंग प्रोटोकॉल्स हैं बहुत मुश्किल है, जो उन्हें लगता है कि इंडिया उन्हें नहीं दे सकेगा। तो अभी इसकी वजह से हमें ये किसी और मुल्क में ना नजर आता है और नहीं आगे आने वाले कुछ सालों तक मुझे कुछ चांसेस नजर वहाँ पे आते वो हैं। सिटीजन्स को राइट नहीं दे पा रहे हैं, Absolutely. और ये- पैंडा के देंगे। Oh my God. बट ये क्यूट लगते हैं लेकिन है बड़े हार्मफुल। Please pass the ball. पासिंग द पैंडा टू यू। मेरा भी फैक्ट जो है पांडा से ही एसोसिएटेड, जिस तरह आपने कहा कि चाइना हैड बीन यूजिंग पांडा फॉर डिप्लोमेसी, लेकिन पांडा के खाने के हवाले से मैं बताऊंगी कि जिस तरह हम जानते हैं वो बैम्बू शूट खाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो ओकेजनली कुछ और भी खा लेते हैं। ओवर टू उर्शिया। थैंक यू अलवीना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन? ब्राजील। हाँ। Nice. Please pass the ball. टू यू। All right. ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। This corner of Kaaba is known as Rukn Yamani because it is situated on the side of the Kaaba which faces the land of Yemen. यमन की तरफ है तो उसको कहेंगे रुकन यमनी। Yes. I'm passing the ball to Alvina. थैंक यू यूनस। मेरा दूसरा फैक्ट भी पांडा के हवाले से है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। पांडा के अगर ट्विन्स हों तो वो सिर्फ उस वाले कप को रखती है जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो सरवाइव कर जाता है, वो उसी को फीड करती है, दूसरे बेचारे को अबंडन कर देती है। Selfish. Please pass the ball. अनम। ओके, थैंक यू अलवीना जी। सो देयर इज अ मिथ रिलेटेड टू आवर नकल्स कि हम जब ये करते हैं तो हमारी फिंगर्स में से एक आवाज आती है, जैसे कि अभी आई है। तो हाँ, मैं कब से ट्राई करती कि मैं इसको प्रैक्टिस करके दिखाऊं ताकि लोगों को इजीली समझ आए। तो ये एक इसके पीछे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इससे आपकी जो है हड्डी मिसप्लेस हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, आपकी उंगलियां मोटियां चौड़ी हो जाती है। हो तो जाती है, ये प्रैक्टिकली देखा है इस तरह। अच्छा होता है? अच्छा, मेरी तो और कांपती भी है तो टांगे कांपती है ना। तो आई एम ब्रेकिंग द मिथ यहाँ पे। और वो ये कि इसमें सिर्फ बबल होती है, एयर बबल्स होती है, जब हम वो प्रेस करते हैं तो वो निकल जाती है और इसमें ऐसा कोई टेक्निकल हमारा मिसप्लेस नहीं होता हड्डियों का, जॉइंट्स का, जो कि लोग कहते हैं। सो इस पे क्लैरिटी होना बहुत लोग कहते हैं ये शैतान की तस्बीह है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। नहीं है। ये मिथ्स है यूनस। Please pass the ball. ये जो साइंटिफिक फैक्ट था, मतलब साइंस इस पे जो कहती है, मैंने वो रिवील किया है। Yes. बहुत अच्छा किया आपने ये। पासिंग द बॉल टू यू। थैंक यू सो मच अनम। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो हमेशा की तरह मेरी तरह बहुत ज्यादा अच्छा है। वो ये है कि क्या आपको ये चीज जलने वाले जलते रहे। क्या आपको ये चीज पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं या आपकी हंसी नहीं रुक रही या आप कहका मार रहे हैं ऐसे, तो आप अगर अपने आप को चूटी काट देंगे तो आपकी हंसी रुक सकती है। आपकी हंसी अक्सर नहीं रुकती। चूटी काटे प्लीज। Please pass the ball. टू अर्शिया। थैंक यू सना। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? पाकिस्तान। रशिया। चाइना। ओके। वाह, 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, आपसे पूछा गया था कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसमें सिर्फ एक जेर आता है। द करेक्ट आंसर इज सूरह इखलास। यस एंड माशाल्लाह से मेजॉरिटी लोगों को पता था। द फर्स्ट जिसने आंसर दिया है उनका नाम है सुफियान जी। सुफियान साहब, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। व्हाट इज हराम बट व्हेन swallowed इज लव्ड बाय अल्लाह? कौन सी ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं हराम है और जब आप उसको निगल लेते हो तो वो अल्लाह खुश होता है? गुस्सा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आंसर। गुस्सा ही है। मुझे भी गुस्सा ही आया। गुस्सा, प्राइड, बहुत आला देसी घी वाला। आई एम आस्किंग अ महंगी रिडल फ्रॉम यू। द महंगी रिडल इज, उन 2 जानदारों के नाम बताएं जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Urshia Hussain.
थैंक यू यूनस। और जो मेरे पास अशार हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, तो प्लीज़ मुलाजा कीजिएगा। इरशाद। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, वाह टूटे भी जो तारा ज़मीन पर नहीं गिरता, वाह गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, वाह लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह 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 समझो वहां फलदार शजर कोई नहीं है, वाह वाह वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। वाह 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 वाह। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, वाह इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। वाह 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 ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड ब्यूटीफुली डिलीवर्ड। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, उनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। सो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बीमारों के लिए। इसी खूबसूरत नोट पर दीजिए हम सबको इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।